اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف آئے ادھر آئے اپنی سچی کہانی سناتے ہیں اپنی سچی کہانی بچاتی ہے جو ایک میٹھی ہلچل کھاتے چڑیا ہو کر یہ بلبل یہی میری آنکھیں یہی ہے میرا دل. ایکسائٹنگ جرنی تھی. بڑا اچھا لگا کام کر کے. جاوید رضا صاحب، عاطف ملک صاحب، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کیریکٹر کے حساب سے ہم نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ جو کیریکٹرائزیشن ہے اس کے ہم معیار پہ اتریں. تو یہ واز اے پلیزر ایکسپیرئنس. آئی تھنک آئی انجوائڈ اٹ. اوور آل فلم اٹ سیلف میں ایک ہم نے کوشش کی کہ ایک سنیمیٹک آپ کو پریزنٹیشن کی جائے. تو اس حساب سے اوور آل ایکسپیرینس فضا کے ساتھ کام کیا. شی از این امیزنگ آرٹسٹ اینڈ وی ورک ویری ویل ٹوگیدر. سو فضا، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی آئی تھنک جو ریلیز ہونے جا رہی ہے یہ پہلی فلم ہے. کیسا ایکسپیرینس آپ کو لگ رہا ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی فلمیں اپنے ریوائول کی طرف جا رہی ہیں؟ وہ کہ بہت سناٹا ہے، بہت مایوسی ہے، بہت مایوسی ہے. ایک فلم بنتی ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ، سپر ہٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. یعنی بلال لاشاری صاحب بھی 4 سال تک کوئی فلم نہیں بناتے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس فلم کے بعد اور ملک صاحب جو دیگر فلم بنا رہے ہیں، فلم میں بننے کا رجحان بنے گا؟ السلام علیکم. پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گی، سب ہمارے لیے آئے اور ملک صاحب ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ. اور جاوید رضا سر جن کے ساتھ کام کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ملک عاقب صاحب جنہوں نے ہمیں بہت اچھا ایکسپوز کیا. اور انشاءاللہ ہم محنت تو کر رہے ہیں، آگے اللہ پاک بہتر کریں. اللہ پاک کے ہاتھ میں کامیابی ہے. سامنے دیکھیے اس وقت جو لاہور میں خصوصاً نئے چہروں کی کمی ہے. ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ اب میں معذرت کے ساتھ وہ اب پیسے اتنے مانگتے ہیں کہ بہت سارے لوگ فلم نہیں بناتے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنے پروڈیوسرز یہاں موجود ہیں کہ جی شان صاحب راضی ہو جائیں، مومی صاحب یا دیگر لوگ، خصوصاً شان صاحب اگر راضی ہو جائیں 10 فلمیں ایک ہی مرتبہ میں شروع ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال وہ ان کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی فلم کے لیے آپ یعنی معاوضے زیادہ ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاوضے اتنے ہونے چاہیے کہ سب سپورٹ کر سکیں ہمیں. ایسی پاکستان کی انڈسٹری کو اٹھانا ہمارا کام ہے. میں نے معاوضے کی بات اس لیے کی کہ تاکہ آگے جا کے پھر آپ معاوضہ نہ بڑھائیں. میں آگے صاحب سے تو بالکل بھی نہیں کروں گی. میں آگے بڑھتا ہوں اور فلم کا ایک اور دلچسپ کردار صاحب کہاں ہے؟ نواز خان صاحب آ گئے. طلعت شاہ صاحب بتائیں اس فلم کے حوالے سے کچھ. میں کچھ پوچھوں گا نہیں، آپ خود بتائیں. میرا تو ویری فرسٹ ایکسپیرینس ہے لاہور میں کام کرنے کا کسی فلم میں. اس سے پہلے میں نے کراچی میں کام کیا، جتنا بھی کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں. اور مشتاق صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ان سے ویری فرسٹ ٹائم جب میری میٹنگ ہوئی تو ان کو میں نے کچھ بریف کیا اپنے بارے میں. ان کو میرا کام پسند آیا. کام دیکھنے کے بعد ایک دوسری فلم ہے ان کی تیرے پیار میں سلام، اس میں تو میرا لیڈ کریکٹر ہے. اور پھر اس میں کی گیسٹ اپیرنس تھی، سکھ کا کریکٹر تھا.
4 सीन्स थे जो मैंने देखे और सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी और ने करना था, स्पार्क था, मैंने कहा मैं करता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्पेशली जावेद रज़ा साहब बड़े प्यार से काम करवाए, मालिक साहब, आकिब साहब बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, बहुत अच्छा इन्होंने शूट किया है। तो मेरी दुआएं हैं सब टीम के लिए, इस फिल्म के लिए, और इन सब जितनी भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सब के लिए अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे, और आने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उसमें भी कामयाबी अता करे। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग फिल्म है, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत फिल्म है और भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं दुआ करता हूँ कि इस सब में प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक को लाने के लिए मैं ज़रा बाहर निकलना पड़ेगा। ये सारा कुछ इसीलिए इसके बाद भी मैं इनसे यही कहूँगा कि हम लोग कोशिश करते हैं अपने अपने जो हमारी साइट्स है, जो हमारे बने हुए फेसबुक पे वगैरह, हम इस फिल्म को इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। एक दफ़ा पब्लिक आ गई, यकीन करिए फिल्म आउटस्टैंडिंग। नहीं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कबीर अहमद साहब, कबीर साहब आपने तशरीफ फरमाया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने शाम को रौनक बख्शी। लंबी जुदाई के ओपनिंग सेरेमनी की शाम मैं मलिक मुश्ताक साहब के नाम पर थी, और जैसा कि अभी शाकिर साहब ने फरमाया कि बड़ी गलत फहमी चैन होनी होगी, तो ये शुरू से इस इंडस्ट्री की रीत रही है कि ये ऐसी बातें होती रहती हैं। जब भी कोई, मैं एक आपसे बात करता हूँ कि इस फिल्म की बात जो आपने की है कि जी इसकी ये शहजाद रफीक साहब बैठे हम इंडिया में इकट्ठे हुआ करते थे और ये मेरे फ्लैट पे आते थे, तो खाना ये पूछते थे और वो सब्जी वगैरह मैं काटता था। तो उन दिनों भी इसी कहानी की बात हुई थी, बैठे साहब, तो इन्होंने कहा यार मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली रंगीला साहब की ये फिल्म चार्ली चैपलिन की सिटी लाइफ है, वो कहानी है। और ये दुनिया में हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, ये 10 दफ़ा बनी है ये सब्जेक्ट, और इवन ईरान और टर्की में भी बनी है, मगर हर किसी ने अपने कैनवस पे बनाई है। खुशबू तो एक ही है ना, ट्राइएंगल है। खुशबू में कभी गुलाब की खुशबू होती है और कभी मोती की होती है, मगर ये 50 साल के वक्फे के बाद जब इतनी 4 जनरेशन तो चेंज हो चुकी है, तो कहानी देखिए, रीमेक या यहाँ पे जो होना जब रीमेक नहीं किया गया, या देवदास को रीमेक नहीं किया गया, ऐसे में हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। कहानी अच्छी है, काम अच्छा है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। आपकी नीयत अच्छी है, आपकी मेहनत है, तो कामयाबी मिलती है। ये क्रिटिसाइज करना जी ये कर दिया जी, वो कर दिया, वो कर दिया, आए देखें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है मेरे भाई। वो मैंने इंशाल्लाह जितनी मुझ में थोड़ी बहुत अकल है, मैंने कोशिश की एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की राह देती है। बाकी मेरी ये टीम है, इन्होंने मेरा साथ दिया है, ये सारे मेरे काबिल एहतराम है। मेरे कैमरामैन साहब बैठे हुए, आकिब मलिक साहब और दोस्त हैं, तो इन्होंने हमने कोशिश की अच्छी फिल्म बनाने के लिए। आके इज्जत उसकी ज़ात देती है। मुझे किसी के क्रिटिसाइज करने से, किसी के रिमार्क्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हम तो शुरू से ही हैं कि हम हैं बताए पूछो बाजार की तरह, उड़ती हर निगाह खरीदार की तरह। तो ये इसमें शरीक हो गए, और खुशी सिर्फ इसलिए हुई है कि मुझे आइंदा उम्मीद की किरण नजर आई है। मेरे राइट साइड पे भी एक मलिक है, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक मलिक है। दोनों मलिक यहाँ बैठे हैं, और दोनों मलिक इंतहाई काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आप लोगों के बारे में ये कहूँगा कि आप लोग मर्द मुजाहिद हैं। आप लोगों में वो टैलेंट पाया जाता है जो ट्राउट फिश में होता है, जो अगेंस्ट वाटर जाती है। जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ तो सब लोग जा रहे होते हैं, सब पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी अगर अगेंस्ट जा रहा हो तो लोग कहते हैं एक किधर जा रहे हैं, वही रास्ता मंजिल पाता है, क्योंकि मंजिल पे एक ही बंदा पहुँचता है, विक्ट्री स्टैंड पे एक ही बंदा पहुँचता है। आप लोगों को मैं सराहत ऐसी पेश करता हूँ, आपकी कामयाबी के लिए मैं दुआ हूँ। और उमूमन आपने सुना होगा कि जब फिल्म रिलीज होती है तो लोग फिल्म देख के आके कहते हैं यार पैसे पूरे हो गए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पैसे पूरे नहीं हुए। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ ये ट्रेलर मैंने देखा है और मैं कह रहा हूँ मुझे पैसे पूरे हो गए, फिल्म तो अभी बाकी है। बहुत जावेद साहब आपने अच्छा काम किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छी आपकी टेकिंग है, बहुत अच्छा आपने काम किया। तैयब खान ने
और जो हीरोइन हमारी फिजा मिर्ज़ा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और फिरोज़ खान मेरे पुराने साथी, मेरे पुराने दोस्त, जब मैं नया आया था मैंने 76 में इनकी एक फिल्म की थी क़यामत। इनका एक वसी तजुर्बा, इनकी सरपरस्ती में फिल्म बनी है, तो मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये फिल्म कामयाब होगी, क्योंकि इस फिल्म में वो यकसानियत नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा। काम किया, अब इनको मौका मिला है, यकीनन अच्छा काम करेंगे। ये जो देखने में आया है बहुत अच्छा है, और हीरो को तो मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, बचपन से देखा है इसको, क्यूट सा है, लड़की भी बहुत अच्छी है। लेकिन इनको मैं एक ही बात समझाऊंगा, अपने अंदर पैशन लेके आए, बड़ों की इज्जत करें, जब कहीं जाएं उनसे इजाज़त लें, जब वापस आएँ उनसे दुआएं दें। अभी आप अपने हीरो बनना है, अगर आप इतने सारे सीनियर्स को अवॉइड करके वहाँ बैठ जाएंगे तो क्या सोचेंगे? क्योंकि आपको एडवाइस है, बड़ों का अदब करेंगे तो कामयाब होंगे, बड़ों का अदब नहीं करेंगे तो कामयाबी आगे बढ़ जाएगी, मिलेगी लंबी मिलेगी। मलिक साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं, बड़ी हिम्मत की बात है, उन्होंने इस दौर में फिल्म चूज़ करने जा रहे हैं और लंबी फहरिस्त है फिल्मों की, बहुत ज़बरदस्त बात है। उनके साथ जो मलिक साहब बैठे हुए हैं उनकी भी लंबी फहरिस्त है, वो बना चुके हैं, आप बना रहे हैं, और हमें खुशी है और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे और आपका लगाया हुआ पैसा आपको वापस आए और आप 3 नहीं 6 फिल्म स्टार्ट करें। जो मैंने देखा है इन दिनों में, मलिक मुश्ताक साहब एज ए मैन, एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए पर्सन, मलिक मुश्ताक ग्रेट पर्सन। बात ज़वाल की होती है इस मुल्क में और रिवाइवल की होती है। ज़वाल में तो हमारा मुल्क भी है, बल्कि सारे इदारे ही ज़वाल में हैं। कौन सा कामयाब है? जो इदारा पाएंगे तो बहुत कामयाब है। सब ज़वाल में जा रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल हो, ज़राअत हो, हर जगह, बल्कि हाउसिंग स्कीम है वो भी फ्लॉप हो गई है। और अगर रिवाइवल की बात है तो रिवाइवल हो सकती है, क्योंकि रिवाइवल पाकिस्तान की नुकसान जो हुआ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। हॉलीवुड बॉलीवुड में भी तबाहियाँ हुई इंडस्ट्री की, मगर उन्होंने बड़े बड़े ग्रुप्स को लेके गवर्नमेंट ने उनको इन्वेस्ट करवाए और उनको इंडस्ट्री को खड़ा करवाया। एडी में इंडस्ट्री, इंडिया का भी प्रॉब्लम आया था, पाकिस्तान को भी आया था, तो वहाँ टाटा जैसे बड़े बड़े ग्रुप आए और इंडस्ट्री को उन्होंने खड़ा किया और पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग की। इसीलिए पूरी दुनिया में उर्दू फिल्में भी उनकी वजह से दुनिया में देखी जा रही है, पंजाबी भी उन्होंने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई। हम उर्दू और पंजाबी की मार्केट तलाश नहीं कर सके, तो हमें चाहिए हम उर्दू और पंजाबी की मार्केट तलाश कर सकें। और रह गए सफदर मलिक साहब हो गए,